हाय इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज थर्सडे है, 1 फरवरी है। ये वीडियो मैं थर्सडे को ही बना रही हूँ, आपको ये फ्राइडे मॉर्निंग मिलेगा ताकि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है अबाउट एन एंट्री यू कैन टेक दैट डिसीजन। तो मैं प्राइस एक्शन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और ये जो स्पेस है वो भी पावर और इंफ्रा का है, और कंपनी का जो प्राइस है वो भी एक रीजनेबल है। बहुत कई आप लोग लिखते रहते हो कि पेनी स्टॉक लीजिए, तो ये पेनी स्टॉक में आता है। और मैं बात करूंगी जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लिमिटेड, ठीक है, which is GPUIL, subsidiary of GEPL, holds expertise in the sectors of energy, urban infrastructure and transportation. This is part of GMR Group. GMR Group जो पूरे एयरपोर्ट्स को देखता है, मेंटेन करता है, उसका ये ग्रुप है। GMR Group is India's multinational conglomerate headquartered in New Delhi. The group was founded by GM Rao and comprises several companies including GMR Infra, GMR Airports, GMR Enterprises, employing the private-public partnership model. और ये जो पर्टिकुलर कंपनी है GMR Power and Infra, ये एक एनर्जी कंपनी है जो कि इनके 3-4 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। उसमें पहला है एनर्जी का, with an operating capacity of over 4,400 megawatt. It has a balanced fuel mix of coal, gas, LHSS, as well as renewable sources of wind and solar energy. It also has plants of over 2,300 megawatt generation capacity under various stages of development in India. अगर इनकी बात करें कि इनके कहाँ क्या 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 प्लांट्स हैं, तो इनका अगर कैपेसिटी की बात करें, वरोरा प्लांट्स है 600 मेगावाट, Kamalanga है about 1050 megawatt, Vemagiri 388 and Bajoli Holy plant is about 180 megawatt. ये इनके 4 प्लांट्स हैं। फिर इनका नेक्स्ट वर्टिकल है ट्रांसपोर्टेशन। In transportation, GMR's transportation business focuses on surface transportation projects including roads, railways, metros and airstrips, runways, etc. And then they have, of course, they have 4 numbers of highway projects covering 350 kilometers of work. अगर हम बात करें EPC, तो it has quality of to provide turnkey EPC solutions across multiple business sectors like airport, energy, highway, railway and urban infrastructure. For DFS's design and consultation of civil structures and track works of double line railway involving formation of embankments, cutting ballast and formation. फिर इनका है in urban infrastructure. So this group has about 1,450 acres of land at strategic locations. Integrated industrial development is currently available. तो अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करते हैं, तो एनर्जी से इनका 55% रेवेन्यू आता है, हाईवे से अबाउट रफली 10% आता है, अदर्स से अबाउट 35% आता है। Company has a total debt of 10,400 crores as on March 2022, which is 1.2 times more than its sales. The company intends to deleverage itself by disinvestment to reduce debt. और अगर बात करें कि इन्होंने कौन कौन से एक्विजिशंस किए हैं, तो इन्होंने 100% स्टेक GMR ग्रीन एनर्जी में एक्वायर किया है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। मार्केट कैप है 3,241 करोड़, ROC कुछ 19% है और बुक वैल्यू नेगेटिव है। करंट प्राइस इज रफली अबाउट 53.7, और अगर हम हाई और लो की बात करें तो 14 रुपए का इसका लो था और हाई इसका है 57.8। उसके बाद कंपनी के प्रोज की बात करते हैं, तो कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, डेटर डेज हैव improved 68 डेज से घट के 36 डेज पे आ गए। उसके बाद कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एंड प्रमोटर्स हैव प्लेज्ड 75% ऑफ देयर होल्डिंग। दैट्स अ वेरी 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 बिग कंसर्न। तो ऐसे केसेस में मैं क्या सजेस्ट करती हूँ, बिकॉज टेक्निकल्स आर लुकिंग गुड, you have to book quick profit and be out. And if you're not convinced with the fundamentals, please don't enter, right? Because I may not be entering. I definitely cannot enter in any of the stocks that I'm giving, but still, this is a very serious matter. 75% of the promoters holding is pledged. Earning include other income of 548 crores. अगर इनकी सेल्स की बात करें, तो सेल्स 2021 से लेके बीच में बहुत अच्छी हो गई थी, 22 में अच्छी हो गई थी, 23 में अच्छी हो गई थी, फिर अभी सितंबर 23 में थोड़ा सा डिक्लाइन है। अगर हम बात करते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स में देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट ग्रोथ and operating profit margins have gone up to 17%, जो पहले कुछ 10% होते थे या नेगेटिव में भी थे,
सितंबर 22, 23, दिसंबर 22 एंड मार्च 23 में कुछ 4-5 -6% थे, वो बढ़ के जून 2023 एंड सितंबर 2023 में 17% हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एवरी टाइम इट्स नेगेटिव, ओके, there is no net profit, so this is a very serious matter. Again, I'm telling you, in such cases when the fundamentals are not good, you have to take quick profit and you be out, or otherwise don't enter. You just look into the break, बस वो देख लो, right? कि टेक्निकल्स भी काम करता है, चाहे कभी फंडामेंटल्स खराब हो, टेक्निकल्स अगर आ रहे हैं तो आपको उसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मिल सकता है। देखो इसको, ये देखने के लिए रखो, प्लीज डोंट गेट इनटू इट एंड डोंट टेल मी कि मेरा लॉस हो गया। सेल्स अगर हम 2021 में बात करें तो 2733 करोड़ की थी और वो बढ़ के मार्च 2023 में ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, और अभी तक जब हम सेल्स की बात करते हैं इस साल में तो वो 4600 की सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर एट अबाउट 7 और 6%। और अगर हम बात करते हैं इनके बोरोइंग्स की, तो बोरोइंग्स इनकी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है और इनके पास रिजर्व्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ओके। तो दैट्स अ बिग कंसर्न। अगर हम बात करते हैं कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो they are producing cash from operating activity, there are profits that they are generating from the operations, or there is some cash which is coming from the operating activities. और जहां तक बात है इनके debtor days, that have gone down and ROC is at about 8% से बढ़ के 19% हो गई है। Promoters holding is about 59.8%. There's good presence of FIIs, although FIIs have exited quite a bit. 27% से reduce करके 21% और उसके बाद 13% और उसके बाद 6.5% पे आ गए, जबकि DIS जो है कांस्टेंट है, उन्होंने थोड़ा इंक्रीज किया है, 2.73% पे है, और पब्लिक जो है काफी इंटरेस्टेड है। हमेशा आप ये नोटिस करिएगा जहां FIIs, DIS are little, not very aggressive on buying, public will be very aggressive on buying. I'm just again repeating my words कि ये जो वीडियो है ये केवल आपके लिए लर्निंग के लिए है कि अगर टेक्निकल ब्रेकआउट आ रहा है, हो सकता है वहां पे एक मूवमेंट आ जाए। तो स्टॉक का नाम है GMR पावर एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड इंफ्रा। दिस इज हाउ द ट्रेंड लाइन इज। स्टॉक धीरे 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 नीचे गिरा है और उसके बाद एक ब्रेकआउट आया है आज के दिन। हालांकि मार्केट वाज वेरी वेरी वॉलेटाइल, बट स्टिल द स्टॉक हैज गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट, ओके। सो अब हमारी बाइंग की एंट्री कहाँ होगी, इसका ट्रेडिंग प्लान भी बना लेते हैं। इसकी बाइंग की एंट्री यहीं पे होगी 53.6, राइट। थोड़ा नीचे मिलता है तो 53.6 को अगर ब्रेक करता है तब आप उस पे एंट्री ले सकते हैं। पहला टारगेट हमको मिलेगा इसमें 55.8 का, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमको मिलेगा इसमें 57.75 का, और अगर ये भी क्रॉस हो जाता है तो आपको 60 और 62 के टारगेट इसमें आते हुए दिखाई देंगे। तो ये मेरा इसमें प्रोजेक्शन रहेगा। और अगेन आई एम टेलिंग यू, एज द फंडामेंटल्स आर नॉट गुड, you got to be extremely careful, right? I'm not suggesting a buy, I'm just saying watch। कई बार देख लो, बाहर खड़ा होके देख लो ना, जरूरी थोड़ी कि हर स्टॉक में हमको ट्रेड करना है। just stand out and watch। so this is a stock that is on my radar, technically looks good but fundamentally looks very weak, not a recommendation। watch it। अगर ब्रेकआउट आता है तो थम्स अप दीजिएगा, और नहीं आता है तो कमेंट लिखिएगा कि नहीं आया तो शायद आप मेरी रिसर्च में कुछ कमी रह गई है। बट ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रही है, नीचे गिर रहा है तो थोड़े स्लगिश तरीके से गिर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है तो वॉल्यूम्स आए हैं आज। आप नीचे के वॉल्यूम्स देखो, स्लो वॉल्यूम्स है जब नीचे गिर रहा है, ऊपर जाते समय एक ब्रेकआउट आ रहा है। यही सारे कंडीशंस मैं ध्यान में रखती हूँ और वही रख के मैंने आपके लिए स्टॉक निकाला है। टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। 10 से 11 जरूर ज्वाइन करना, लाइव मार्केट में, लाइव ट्रेडिंग, लाइव प्रॉफिट एंड गो बैक। मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।